Hello students, welcome back to ISR Academy. Starting with a very new chapter of biotechnology, which is yet another interesting chapter, and understanding and dealing with something which is really modern, something which is very interesting in terms of changes which we can make in the structure of genetic makeup of an organism. It can be in terms of DNA, it can be in terms of RNA. सो अभी तक अपन ने जो चैप्टर्स खत्म किए हैं गाइस, दीज आर ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी एज अ स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स, ऑल ऑफ दैट वी हैव स्टडीड. ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, विच इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स वी कैन से. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेनेटिक्स, इट इज मेकिंग यू एज अ पर्सन. द सेल्युलर makeup of the particular organism is nothing but the DNA or the genetic material, and that genetic material we can do multiple things in the recent advent and the benefit that we have because of something called as biotechnology. Now students, in this chapter of biotechnology will be understanding two important terminologies: the old biology or the biological methods, how are we integrating with the technology part, and when we combine these things together, what are we getting out of it. So nothing but biotechnology, one of the very interesting chapters in your biology syllabus, and let's begin with and dive in deeper to understand much about it. So students, when we talk about biotechnology का मतलब क्या है, क्या जानते हैं आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. सिंपली एक चीज आपको समझना है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जो है, इट इज द मिक्स ऑफ द टू वर्ड्स. ओके, यू लुक एट इट. अगर मैंने बोला बायोटेक्नोलॉजी, देखो ये ना दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. कौन से दो वर्ड्स? वन इज नथिंग बट बायोलॉजी, okay, which is the knowledge that we have in terms of science, and you combine that with something called as technology which we have today. So जब आप टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी को मिक्स करके मर्ज कर देंगे, आपको एक बड़ा सा एक ब्रांच मिल जाता है which is fairly new, and that branch is what is called as biotechnology. So students, biotechnology is nothing but you can change in the molecular level, okay, change at the molecular level, or changes that can occur in the DNA, changes that can occur in the RNA, only for the purpose of human welfare. ह्यूमन वेलफेयर के लिए अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, इनफैक्ट अगर ह्यूमंस के खुद के डीएनए को भी अगर आप मैनिपुलेट करते हो या चेंजेस करते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. द ओनली इंटेंशन हियर इज टू मेक आवर लाइफ इजियर. सो एक टाइम था जहां पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे बीमारियों का क्योर नहीं था, ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. उस दौरान द ओनली सोल्यूशन वाज दैट वी कांट have a treatment of that particular problem or that particular genetic disorder. But today, due to the science being so advanced, today we have another yet branch which is biotechnology, dealing particularly with manipulation or changes or alterations in the DNA or RNA of any kind of organism only for our benefit. So therefore, when we talk about biotechnology, as I said, you can change the DNA or RNA for the purpose of human welfare of the host of different organisms. ये कौन से organisms हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकता है, for that matter ये वायरस हो सकता है, for that matter ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स. सो मतलब बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस इस चैप्टर को है, एंड ये चैप्टर एग्जैक्टली फोकस कर रहा है कि इस चीज को हम लोग कैसे रेप्लिकेट कर पाएंगे और हमारे लाइव्स कैसे आसान हम बना पाएंगे. सो स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में ना दो एस्पेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. सो बेसिकली इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, सबसे पहला एक है जिसको आप बोलते हो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. ओके, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है. स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल साइंसेस का मतलब क्या है कि भाई जो पुराने जमाने में जब आपके पास उतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था बट नॉलेज था, आज भी आपके घर पे कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, बट majority of the people, or maybe say certain percentage of the people, may not even really know what is the science behind it, but yet still we are doing it. Same thing is with fermentation, making of idli, dhoklas,
making of any kind of fermented foods. It can be wine, it can be alcohol. All of these things will have certain kind of science being involved. बट ये तो सालों साल चले आ रहा है. चीज मेकिंग हो गया, सो ये तो सालों साल चले आ रहा है. बट ये टेक्नोलॉजी जो आज अपने पास आई हुई है, ये टेक्नोलॉजी के जरिए हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई इसके पीछे का साइंस एग्जैक्टली क्या है. तो अगर मैंने वो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट वहां से हटा दिया तो जो बचता है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी होता है. इट इज अ ओल्ड स्कूल बायोटेक्नोलॉजी विच मीन्स इट इज एम्फसाइजिंग ऑन द ओल्ड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक पर्पसेस. तो जो भी ओल्ड मेथड्स थे, जो भी ओल्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे, जो तब उसके वो जमाने में इतने नहीं थे, तब हमारा लाइफ कैसा था, तब साइंस कितना प्रोग्रेस था, ये चीजें हम लोग यहाँ पे समझते हैं. सो इसमें 2-3 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपका सिलेबस बात करता है. वन कैन बी फर्मेंटेशन प्रोसेस. ओके, सो एक इसमें हो सकता है फर्मेंटेशन प्रोसेस. देन साथ ही साथ इट कैन फर्मेंटेशन कैन इंक्लूड वाइन मेकिंग ऑल्सो. ठीक है, पुराने जमाने का वाइन मेकिंग ये हो सकता है. देन यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन लाइक इडलीज. देन यू कैन हैव चीज मेकिंग. चीज मेकिंग तो सालों साल चल रहा है. तो ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज जो है, दिस फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. अभी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, उतना मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उससे ज्यादा. तो सेकेंड टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने आपने बायोलॉजिकल नॉलेज लिया. ठीक है, आपके पास जो बायोलॉजिकल नॉलेज था या बायोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे वो आपने ले लिए. इस बायोलॉजिकल नॉलेज को यू आर कंबाइनिंग विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप कंबाइन कर रहे हैं, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ आप कंबाइन कर दे रहे हैं. ऐसा कोई भी मेथड, ऐसा कोई भी चीज जहां पे आप बायोलॉजिकल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. इसमें क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कुछ एग्जांपल्स है जो फिलहाल अभी आपको शायद ना पता हो, बट आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं. इट कैन बी RDNA टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक ये हो सकता है. You can have RDNA technology. Then you can have PCR, which is called as polymerase chain reaction. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में हमको अवेलेबल है. सो दिस इज स्टूडेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. एंड जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक नया ब्रांच, जो उसका सब ब्रांच है ऐसा बोल सकते हो आप. इट इज नथिंग बट जेनेटिक इंजीनियरिंग. वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग फील्ड्स स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या, देखो जरा खुद ही वर्ड देखो. इंजीनियरिंग इज कुछ तो जुगाड़, कुछ तो समथिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. जेनेटिक इज जीन और द जेनेटिक मेकअप. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि इट इज सम नथिंग बट सिंपली मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप जेनेटिक मेकअप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हो. मगर एक चीज याद रखने का गाइस, ये मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए ही होता है. सो दैट इज व्हाई दिस बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसी के बारे में अपने को अभी जानना है. सो ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जो मेंशन किया है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ biotechnology, or very importantly, how are we talking and dealing with this concept of genetic engineering. So now let's dive in deeper and understand the principles in the process. So the next topic is principles and process of RDNA, or rather we can say biotechnology.
ठीक है, इसी के अंदर मैं ये एक पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं, और वो पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग गाइस है क्या? ठीक है, इस ब्रांच को जरा समझने का कोशिश करिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है स्टूडेंट्स? जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपली अगर देखूं, जैसे मैंने बताया, ये एक मैनिपुलेशन है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। एंड ये मैनिपुलेशन किसका हो रहा है? दिस मैनिपुलेशन इज अकरिंग ऑफ नथिंग बट द डीएनए, और इन शॉर्ट एनी काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी जेनेटिक मटेरियल का जो मेकअप है, उस चीज के साथ अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो। मान लीजिए कि आपके पास ये डीएनए है। ठीक है, ये आपको मानना है कि ये आपके पास डीएनए है। ठीक है, इसके अंदर देर इज वन सीक्वेंस विच इज डिफेक्टिव। ये जो मैंने ब्लू कलर में कर दिया है, मान लीजिए ये जो सीक्वेंस है पूरा का पूरा, दिस सीक्वेंस इज एंटायरली डिफेक्टिव। ये पूरा खराब है। अभी जब आपको, आपके पास जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जब आपके पास साइंस अवेलेबल नहीं था, उस वक्त पे क्या सोल्यूशन नहीं है? अगर ये कोई इंपॉर्टेंट जीन था जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम बना रहा है, देन भाई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर वो तो जीन फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो तो फंक्शन होगा नहीं। फंक्शन नहीं होगा तो भाई इट कैन, अगर वो कोई मेजर प्रोटीन है, मेजर एंजाइम है, तो फिर बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ सकता है। इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि भाई आपके पास मान लो, तुम्हारे पास अभी तुम लोगों ने क्या किया जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तुमको पता है कि इतना जीन खराब है, बराबर? तुम लोग को इतना जीन खराब है पता है, तो तुम लोगों ने क्या किया, उसको तुम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। सो दिस जीन, ये जो आप देख रहे हो, दिस, इसको मान लीजिए इट इज अ डिफेक्टिव जीन। ठीक है, ये मान लीजिए डिफेक्टिव जीन है, और यही डिफेक्टिव जीन जो है, ये डिफेक्टिव जीन एक तो रिप्लेस करा जाएगा या फिर डिलीट करा जाएगा। और अगर रिप्लेस या फिर मान लो डिलीट कर लिया, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? मान लीजिए कि आपके पास ये आपका डीएनए था। ओके, सो ओके, एंड देन यू हैव दिस डिफेक्टिव जीन। उस डिफेक्टिव जीन को बदल कर मैंने क्या कर दिया, मैंने ना नया जीन लगा दिया यहाँ पे। तुम समझ रहे हो? भाई इसी को आप मैनिपुलेशन कहते हो। इसी को आपने क्या कहा? मैनिपुलेशन। क्या आपने क्या किया? यू हैव replaced you have replaced the डिफेक्टिव जीन। आपका जो जीन डिफेक्टिव था, उसको चीज को आपने क्या कर दिया, उसको आपने रिप्लेस कर दिया। इसी चीज को गाइस भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि जहां पे आपने जेनेटिक मेकअप को थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, और उस चेंजेस के जरिए आपने कुछ तो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज rDNA टेक्नोलॉजी, और समथिंग कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज आर, और रैदर सिंपली अगर आप देखेंगे तो इट इज जीन मैनिपुलेशन। ठीक है, जीन मैनिपुलेशन, कि आपने कुछ तो चेंजेस कर दिया ना जीन के अंदर, कुछ तो चेंजेस आए हैं ना, सो ऐसा। तो दिस इज जीन मैनिपुलेशन, एंड जीन मैनिपुलेशन आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, बिकॉज अगर कोई मेजर डिफेक्टिव जीन्स हुए हैं फॉर सम रीजंस, then you will have a chance to really correct it, and also experience the new form of that gene, making that organism healthy, making that organism disease free or any kind of problem free. So that is why gene manipulation becomes extremely important. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी अपन जाते हैं मेथोडोलॉजीज। ओके, मेथोडोलॉजीज ऑफ rDNA, or in short something called as
rDNA टेक्नोलॉजी। अभी तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई सर व्हाट इज rDNA टेक्नोलॉजी। ये जो जीन मैनिपुलेशन आपने किया ना, इसी को rDNA बोलते हैं। दिस rDNA stands for recombinant DNA टेक्नोलॉजी। सो दिस rDNA इज recombinant DNA। कैसे किया उसी को अभी अपने को जानना है कि अपन एग्जैक्टली इस प्रोसेस को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर एक टॉपिक जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज द, अगर आपको rDNA करना है तो फिर भाई व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू रिक्वायर। ठीक है, आपके पास ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले देखो इंस्ट्रूमेंटेशन है तो ही वो मॉडर्न बायोटेक है ना, तो मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लग सकते हैं आपको जो यूज हो सकते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स we have now, जैसे for example you can take something called as age। ठीक है, age, what is age? Age is called as agarose gel electrophoresis। Now what is agarose gel electrophoresis? Agarose gel electrophoresis is nothing but movement of DNA based on साइज। अगर साइज के हिसाब से डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज योर agarose gel electrophoresis। भले इन शॉर्ट एज जो है, एज ये आपका ऐसा टेक्निक है विच सेपरेट्स योर डीएनए। ये डीएनए को सेपरेट कर देता है। then you can have second technique which is called as पेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पता बहुत बड़ा है, सेम है ऑलमोस्ट, बट इट इज पॉलीएक्रिलामाइड। ओके, अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है, दिस टेक्नोलॉजी it is used in separation of proteins। ये भैया प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा भाई और एक है, मैं नाम बस बता रहा हूँ आपको, विच इज कॉल्ड एज SDS पेज। SDS page, which is sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis। So this is what is different methods for separation of molecules। So अलग अलग मान लो प्रोटीन सेपरेट करना है, डीएनए सेपरेट करना है, तो आप ये कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको डीएनए का क्वांटिटी इंक्रीज करना है, अगर एम्पलीफाई करना है डीएनए को, ठीक है, तो व्हाट कैन यू डू? सो इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई, इफ यू वांट टू रियली एम्पलीफाई द डीएनए, यू कैन गो विद अनदर टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज PCR। PCR is nothing but the method of DNA एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अगर आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है, डीएनए को मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी बढ़ाना है, तो आप ये कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और पीसीआर को अपने को डिटेल में आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस तो डेफिनेटली करना है, बट अभी के लिए तुमको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देन यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। सो एक ये हो गया। देन यू कैन हैव क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? अगेन सेपरेशन मेथड है एक टाइप का क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर आपको अलग अलग मेथड्स यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव जेल परमिएशन। ये सारे मेथड्स को डिटेल में आपके सिलेबस में डिस्कस किया है नहीं, तो अपन भी ज़्यादा डिस्कस इसको करेंगे नहीं। जेल परमिएशन है। देन यू कैन हैव आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, देन इसके अलावा यू हैव सर्टन विजुअलाइजेशन मेथड्स ऑफ विच वन मेंशन्ड हियर इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एंड इसके अंदर कैटेगोरिकली अगर आपको मास वगैरह से रिलेटेड कुछ एनालिसिस करना है, देन यू कैन हैव मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।
ठीक है, तो ये सारे अलग अलग मेथड्स आपके जो मेथड्स है, जो RDNA का टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे आप मेथड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक टॉपिक अभी अपने को देखने का है विच इज द प्रोसेस ऑफ DNA एम्पलीफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो। ठीक है, सो इट इज अ मेथड ऑफ, अभी के लिए तो DNA, बट आप RNA, डेफिनेटली RNA भी कर सकते हो। सो DNA एम्पलीफिकेशन, और इस DNA एम्पलीफिकेशन का नाम है PCR। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज PCR। स्टूडेंट्स, PCR का फुल फॉर्म क्या है? पीसीआर जो होता है, पीसीआर इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैरी म्यूलिस। ठीक है, कैरी म्यूलिस was a scientist who discovered the process of PCR। करता क्या है, करता क्या है, तुम्हारे पास अगर मान लो एक शॉर्ट DNA सेगमेंट है, लिमिटेड और फ्यू DNA सेगमेंट्स, ओके, आपके पास लिमिटेड DNA सेगमेंट्स है, इन लिमिटेड DNA सेगमेंट्स को अगर आपने PCR कर दिया, तो PCR क्या करेगा, इसको एक ह्यूज नंबर ऑफ DNA सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज का हो सकता है, बहुत सारे DNA सेगमेंट्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या मेथड है, इसी को आप PCR बोलते हो। PCR के अंदर आपके पास 3 स्टेप्स है। ठीक है, सो नाउ विल जंप इन मेथड्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ द PCR। सो अभी देखते हैं स्टेप्स ऑफ द PCR और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो गाइज इसके अंदर क्या है, सबसे पहला स्टेप जो है, मैं पहला स्टेप्स के नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन। ठीक है, डीनेचरेशन। दूसरा है अनीलिंग। ठीक है, दूसरा है अनीलिंग, एंड तीसरा जो है, तीसरा इट इज एक्सटेंशन। सो यू हैव डीनेचरेशन, यू हैव annealing एंड देन यू हैव एक्सटेंशन। ये 3 मेथड्स होते हैं। आप स्क्रीन के राइट साइड में भी देख सकते हैं डायग्राम जो मैंने वहाँ पे लगवाया है। सो दैट इज योर 3 स्टेप्स इन द PCR, एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। एम समझना जरूरी है गाइस, एम क्या हमारा DNA को एम्पलीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो अपन देखने वाले हैं इसके अंदर, इट इज नथिंग बट डीनेचरेशन। ठीक है, अभी अपन जानते हैं डीनेचरेशन के बारे में। अभी स्टूडेंट्स, ये डीनेचरेशन क्या है? डीनेचरेशन मतलब आपने सबसे पहले DNA को सेपरेट करना है। मतलब क्या, लुक एट द डायग्राम देयर, लुक एट द डायग्राम। डीनेचरेशन में क्या कर रहे हो आप? यू आर हीटिंग द DNA एट हाई टेम्परेचर्स। अभी ये हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है? हाई टेम्परेचर 90 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर आपको ये हो सकता है। सो आपने क्या किया, डीनेचरेशन में होता क्या है? डीनेचरेशन में आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक। और आपको ये पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द डीएनए के बीच में प्रेजेंट है। तो डीएनए को जब वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रहेगा, ठीक है, यू वुड वांट टू लुक एट द डायग्राम। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, डीएस डीएनए जो रहेगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, यस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यही स्टेप है डीनेचरेशन का। यहाँ पे देखो जरा प्रोसेस देखो, डीएनए कैसा हो गया, पहला पूरा था, अभी क्या हो गया, अभी वो सेपरेट हो गया, पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। जब डीएनए सेपरेट हो गया तो बीच में कैन यू सी थोड़ा गैप आ गया है। ठीक है, दिस इज योर डीनेचरेशन। यहाँ में मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो अलग से वापस बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, देन यू हैव द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज अनीलिंग। द सेकेंड स्टेप, द सेकेंड स्टेप इज अनीलिंग। अनीलिंग मतलब क्या, मुझे डीएनए को मल्टीप्लाई करना खुद ब खुद तो कर नहीं सकता हूँ,
ठीक है, रेप्लिकेशन में मैंने ये बताया था. सो व्हाट डू यू रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज प्राइमर्स. क्या आपको ना प्राइमर्स लगता है, प्राइमर्स. तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर्स. अभी गाइस जिनको प्राइमर्स पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ. प्राइमर्स जो होता है ना, प्राइमर्स, दीज आर शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब ये कि भाई ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं, एकदम कम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं. एंड दिस प्राइमर, ये जो प्राइमर होता है, प्राइमर, this primer is attached on the 3' end of template DNA. रेप्लिकेशन में भी देखो, याद करो, ऐसे हो रहा था. ठीक है, तो टेम्पलेट डीएनए जो रहेगा जिसको मल्टीप्लाई करना है, उसके 3' एंड पे इसका अटैचमेंट होने वाला है. देखिए जरा अनीलिंग में देखो, कैन यू सी हियर दिस अटैचमेंट एट दिस साइड एक है और एक इस तरफ है, ऑपोजिट तरफ है. और ये जो अटैचमेंट होता है गाइस, दिस अटैचमेंट कैन अकर एट अ टेम्परेचर रेंज. ओके, ये जो अनीलिंग होता है, अनीलिंग, this can require temperature of about 55 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अनीलिंग हो गया. तीसरा मेथड क्या है गाइस, व्हाट इट इज? यस, तीसरा मेथड इज एक्सटेंशन. तीसरा मेथड इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. यस, परफेक्ट. सो इट इज addition of nucleotides. Okay, addition of nucleotides and you'll require an enzyme ना. न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कौन करता है? याद करो. न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कौन करता है? यस, करेक्ट, डीएनए पॉलीमरेज. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको डीएनए पॉलीमरेज लगने वाला है, बट ये नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज चलेगा नहीं. क्यों ऐसा? बिकॉज ना अपन डीएनए को एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं. 95 पे जब आप डीएनए को हीट कर रहे हो तो ऑलरेडी इतना टेम्परेचर ज्यादा है कि अगर आपने वहां पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को यूज कर दिया तो इट विल डीनेचर. एंजाइम है वो, इट विल डीनेचर. सो यू डोंट वांट टू हैव अ नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज. सो इन दैट केस व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो, ये डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है, इट इज आइसोलेटेड. दिस डीएनए पॉलीमरेज इज isolated from a bacteria and this bacteria is called as an extremophile. extremophile मतलब क्या? those who live in extreme conditions. इसके अंदर एक आपने लेने वाले हैं which is a thermophile. thermophile मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो एकदम extremely hot conditions में रहता है. इसका एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है गाइस, तो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ. The conditions or the thermophile, the name of the thermophile is called as Thermus aquaticus. ठीक है, Thermus aquaticus एक बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया से आपने डीएनए पॉलीमरेज निकाला. उस डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज. ये टैक पॉलीमरेज समझा? T फॉर थर्मस, AQ फॉर aquaticus. ठीक है, टैक पॉलीमरेज आपने निकाल लिया. और ये कहां से निकाला? सोर्स क्या है? इट कैन बी डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट्स. ओके, ये गर्म पानी का जो एरिया होता है वहां पे, या फिर आप ले सकते हो हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे बहुत सारा गर्म पानी होगा और लावा के आसपास वगैरह, वहां से आप इस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हो. समझ में आ रहा है? सो यू हैव एक्सटेंशन. एक बार एक्सटेंशन हो गया, देखिए एक्सटेंशन कौन से टेम्परेचर पे हो? नियर अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे एक्सटेंशन का टेम्परेचर विल बी अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अभी देखो, the cycle of one denaturation
1 annealing and 1 extension, ऐसे जो 3 साइकिल होंगे, तीनों साइकिल को जो आप कंबाइन करोगे, सो तीनों स्टेप्स को आई मीन denaturation, then you have annealing, then you have extension. ये जो पूरा स्टेप है, ये पूरा का पूरा स्टेप को आप बोलते हो 1 cycle of PCR. And one cycle of PCR can take about 2 to 3 minutes. 2 से 3 मिनट एक साइकिल लेता है. और अगर ऑन एन एवरेज आप एक पीसीआर को तकरीबन 28 से 30 साइकिल लेते हो. ठीक है, 1 PCR इज अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 28 to 30 साइकिल्स. तो जाके आपको इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए मिल जाएगा आपके प्रोसेस के लिए. समझ में आ रहा है गाइस? सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर एम्प्लीफिकेशन. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसके बिना ना काम नहीं होता. ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इसके बिना कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कहीं पे कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पीसीआर का स्टेप नहीं है तो. एंड देयरफॉर पीसीआर बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हैव अ ग्लैंस एट द फ्लो चार्ट दैट इज देयर इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. एंड दिस फ्लो चार्ट देन वी कैन डिस्कस इवेंचुअली कि भाई दिस इज पीसीआर. इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द बायोलॉजिकल टूल्स. ओके, biological tools, what are the methods, the tools involved in case of rDNA technology. तो उसको समझते फटाक से. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. ओके फाइन, चलो. now you have the next topic of discussion which is called as the biological tools. ठीक है, biological tools. ठीक है, बायोलॉजिकल टूल्स. स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजिकल टूल्स है ये क्या है? सबसे पहले आपको इसमें चाहिए एंजाइम्स. ठीक है, आपको ऑब्वियसली इतना आरडीएनए टेक्नोलॉजी करने को आपको एंजाइम्स तो लगने वाले हैं. सो एंजाइम्स आपको लगेंगे. अभी स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि भाई रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स लगे थे? यस. तो वैसे ही सेम कुछ एंजाइम्स आपको यहाँ पे भी लग सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन रिक्वायर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको लग सकते हैं. आपको कुछ और एंजाइम्स लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियेजेस जो डीएनए को कट करेंगे. देन यू मे आल्सो रिक्वायर एंजाइम्स सच एज डीएनए पॉलीमरेज. ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए. देन यू मे रिक्वायर डीएनए लाइगेज, ये लग सकता है आपको. देन उसके बाद देन उसके बाद आपको लग सकता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, एटसेट्रा. ये सारी चीजें आपको लग सकती है. इसमें से, ये एंजाइम्स की लिस्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसके बारे में अभी अपन बात करना चाह रहे हैं. एंड दिस इज नथिंग बट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स गाइस होते क्या है, ये बात जरा समझना. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स which can enzymes which can cut the DNA at specific points. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जगह पे या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जब कोई एंजाइम डीएनए को कट करता है, इट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया. ठीक है, ये बैक्टीरिया से आप जनरली आइसोलेट इसको करते हैं. एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स गाइस होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स
मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये जो होंगे आपके, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है जिसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है, और एक होता है जिसको आप बोलते हो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे दो, मैं पहला जो इजी है वो क्लियर कर देता हूँ फटाक से, ठीक है। सो वी हैव रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस आपके पास हो सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या है? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो होता है, इट इज एन एंजाइम, it is an enzyme which cuts the DNA at the edges मतलब क्या, कॉर्नर पे, एकदम एंड पे डीएनए को कट करता है। इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। तुम्हारे पास मान लो ये डीएनए ऐसा है, ओके। अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आया, मान लो दिस इज योर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, इधर कट कर दिया और इधर कट कर दिया, एजेस। व्हेन अ रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कट्स द डीएनए दी एजेस, इट इज रेस्ट्रिक्शन एक्सो मतलब बाहर बाहर, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थोड़ा अलग होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इट इज अ एंजाइम, it is an enzyme which cuts the DNA from within मतलब अंदर से, डीएनए अंदर से काटता है, अंदर से काटता है। फॉर एग्जाम्पल, सो यू हैव अ डीएनए, ठीक है, डीएनए है, आपने क्या करना है, तुम्हारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, ये मान लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये जो है, ये जब डीएनए को ऐसा बीच में से काटेगा, बीच में से काटेगा, जब बीच में से कट हो रहा है, डन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडो मतलब अंदर। दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं। क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस ने क्या किया, एक्सोन्यूक्लियस ने पूरा डीएनए को एजेस पे कट किया है, और जो आपका एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, बीच में से कट किया है, ठीक है। तो बीच में से कट किया हुआ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का, ठीक है। सो एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसे कुछ भी तोड़ू फाड़ू कर देगा क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। कहाँ पे कट करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या किस दल भी काटने का, बीच में मतलब कितना, बीच में कितना भार, वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस को अभी अपन आंसर करते हैं। आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसका आ गया रहेगा, ठीक है। सो अभी इसका क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यू हैव स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंसेस फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, दे recognize something called as recognition sequence। और ये recognition sequence क्या है, एक टाइप का आइडेंटिफिकेशन मार्कर है, जो आपको बताता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बताता है कि भैया आपको इस जगह पे उसको कट करना है। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ मार्कर, इट्स अ टाइप ऑफ अ stretch of a sequence which will let the restriction enzyme know that you'll have to cut here. So that is in general idea of a restriction or a recognition sequence. ये जो recognition sequence होता है, इसके साथ साथ ये recognition sequence को आप बोलते हो पैलिंड्रोमिक
sequence. ठीक है, it is called as a palindromic sequence. Now let's define students what is a palindromic sequence. इसको समझते बहुत important है. Palindrome, ठीक है, palindrome. Now students, what is a palindrome? A palindrome is a sequence which, when read forward to backward or backward to forward, दोनों केसेस में अगर आपने ऐसा कोई सीक्वेंस पकड़ा जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, आगे से पीछे और पीछे से आगे, दोनों जगह से इट रीड्स सेम, अगर सेम रीडिंग फ्रेम रहेगा उसका तो उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं. एक जस्ट आइडिया के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे आपको, देखो जरा. मॉम मॉम, ठीक है, मैडम मैडम, ठीक है, मलयालम मलयालम, इनको पैलिंड्रोम बोलते हो आप, इनको पैलिंड्रोम बोलते हो. ठीक है, अभी एक्चुअल एग्जांपल इसका, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे 5 रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दिए गए हैं अलग अलग एंजाइम्स के, बट मैं तुमको एक ही बता रहा हूँ, एटलीस्ट एक याद रखना. ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस का. जैसे फॉर एग्जांपल 5 प्राइम ऐसे, 5 प्राइम GAATC, या फिर 3 प्राइम CTTAAG 5 प्राइम. कैन यू स्पॉट द रीडिंग फ्रेम इज सेम? नहीं, रीडिंग फ्रेम सेम नहीं है. देखिए जरा यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए, क्या सीक्वेंस है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए. यस, परफेक्ट. 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज GAATTC, दैट GAATTC. एंड नीचे देखेंगे तो उल्टा जाएंगे तो GAATTC. समझ में आ रहा है? इसको आप रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं. ओके, अभी अपन देखते हैं एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर, कि हाउ डू यू नेम द एंजाइम. सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग nomenclature of restriction enzymes. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ. एग्जांपल्स, मोस्ट कॉमन eco R1, hin D2, then you have पहले मान लो कि ये दो ले लिए. ओके, देन यू हैव और एक ले सकते हैं अपन, स्मा 1. ठीक है, देन यू कैन हैव बाम H1. बस हो गया 4. चारों के चारों का नाम है, आपको इसका फुल फॉर्म बता दें होता क्या है. ठीक है, जीनस, स्पीशीज. ओके, नेम ऑफ द स्ट्रैंड, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी. मतलब इसका नाम क्या आएगा पता है? Escherichia coli. E for Escherichia, CO for coli. Strand R number 1. वैसा है. ठीक है, but it is isolated from a bacteria called as Escherichia coli or E. coli. Hind is Haemophilus influenzae. Okay, Haemophilus influenzae, strand D, sequence of discovery 2nd. SMA is Serratia marcescens. Okay, Serratia marcescens, order of discovery 1.
BAM-H1 is Bacillus myeloliquefacial, ठीक है, स्ट्रैंड एच सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी 1। जितना मैंने एटलीस्ट यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है उतना प्लीज आप अगर करके जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। सबके सब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा याद रखिए, मगर इतने जो एटलीस्ट 4 है उतना याद रखेंगे तो काफी बेटर आपके लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है पक्के से? नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले, विच इज कॉल्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स नाउ, कि हाउ डू यू मल्टीप्लाई द चॉइस ऑफ डीएनए इनटू योर होस्ट ऑर्गेनिज्म। So now we are going on to the next topic, which is called as the cloning vector. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, क्या है क्लोनिंग वेक्टर? ये क्लोनिंग वेक्टर्स जो है, क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब ये कि भाई आप किस तरीके से आपका चॉइस ऑफ डीएनए को, तो आपका जो भी चॉइस ऑफ डीएनए होगा या चॉइस ऑफ जीन होगा, डीएनए तो नहीं हो सकता, चॉइस ऑफ जीन जो होगा छोटा सीक्वेंस, इस चॉइस ऑफ डीएनए को यू आर इंसर्टिंग इन समथिंग कॉल्ड एज अ वेक्टर। देखो भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है जरा समझिए आप। ये लॉजिक क्या है, तुम्हारे पास मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, अभी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अभी तुम बोलोगे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अ सेगमेंट, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा ये आपका चॉइस रहेगा कि आपको किस चीज को मल्टीप्लाई करना है। ओके, किस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये जनरली आप 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेप्लिकेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला, मोस्ट कॉमनली यू कैन डू इट इन बैक्टीरिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन प्लांट्स एंड देन यू कैन ऑल्सो डू इट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। ये 3 ऑर्गेनिजम्स में आप करते हो, बट ये डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट ना बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल्स में जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना यहां से, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को यू विल हैव टू लोड ऑन समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर। वेक्टर इज लाइक अ टैक्सी। क्या फंक्शन करेगा वेक्टर? वेक्टर विल डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, टू सूटेबल होस्ट। ये जो ऊपर मैंने होस्ट मेंशन किए हैं 3 ऑर्गेनिज्म, उनमें से जो भी आपने सिलेक्ट किया रहेगा, उन कोई भी ऑर्गेनिज्म में से एक में ये क्या करेगा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो लोड कर देगा, उसका बेसिक काम। और यही वेक्टर को अभी अपन समझते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स मोस्ट कॉमनली। सो विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स अपन जानते हैं, examples, most commonly used vectors, it is what is called as a plasmid vector, okay, plasmid हो सकता है, then you can have phagmid, then you can have something called as cosmid, then you have something called as bac, then you have something called as yak, and then you have something called as mac। ठीक है, से बहुत सारे एग्जांपल्स है। इसमें से आपको मतलब साइज के हिसाब से, देखो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज सेम ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, साइज कैन बी वेरिएबल, साइज वेरी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप इसमें से कोई भी वेक्टर बेस्ड ऑन साइजेस ले सकते हो, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज नथिंग बट इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, okay, it's an extra chromosomal circular DNA, okay, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सर्कुलर डीएनए है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड बैक्टीरिया के अंदर दिस कैन रेप्लिकेट, ओके, दिस कैन replicate autonomously, it can replicate autonomously, ठीक है, ऑटोनॉमस में इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मिड्स,
सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मिड लेते हैं. ओके, जैसे you have one which is called as PUC19, then you have ORIC which is called as PBR322. ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं. पक का फुल फॉर्म दे देता हूँ. पक स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, P फॉर U फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, नंबर ऑफ डिस्कवरी 19. ठीक है. PBR का P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिग्यूस, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी 322. एटलीस्ट ये दो एग्जांपल्स गाइस याद रखना, दो एग्जांपल्स याद रखना. ठीक है. और दूसरे के फुल फॉर्म्स आपको फाजमिड तो ठीक है, वो आयरस से निकलता है, कॉस्मिड वगैरह. इन तीन का फुल फॉर्म्स आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ. बैक is bacterial artificial chromosome. ठीक है. Then you have yak. It is called as yeast artificial chromosome. ठीक है. Then you have mac, which is mammalian artificial chromosome. ठीक है. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स गाइस किसके रहे? These are the examples of plasmids. पक्का समझ में आ रहा है? प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड के अंदर एक चीज आपको समझना है कि भाई आपके पास जो प्लाज्मिड होना चाहिए, सबसे पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब कि इट शुड हैव एन एबिलिटी टू टेक अप द डीएनए, वो डीएनए ले सकता है. ओके. एंड अदर देन दैट योर डीएनए शुड बी टेकन अप बाय द होस्ट ऑल्सो. ठीक है. सो अगर बैक्टीरिया के केस में तो मैंने तुमको बता दिया ये वाला एग्जाम्पल है. और अगर मान लीजिए कि प्लांट्स में सेम चीज करनी है. ओके. सो ये पूरे ये बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया के केस में अगर मान लो कि प्लाज्मिड फॉर प्लांट्स अगर अपने को देखना है, ठीक है, प्लाज्मिड फॉर प्लांट्स, अगर प्लांट्स के केस में देखना है प्लाज्मिड, so this can be, let's say for example, I have agrobacterium vectors. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स. अभी एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. पूरा नाम इसका होता है एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. ठीक है. दिस इज अ बैक्टीरिया. अभी इस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड इनहेरेंटली होता है. एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड ऑलरेडी होता है एंड दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज अ टीआई प्लाज्मिड. ठीक है. टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म, टीआई का फुल फॉर्म इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ये क्या करता है पता है? ये जो है ना भाई साहब, टीआई प्लाज्मिड causes crown gall tumor. It causes crown gall tumor. Crown gall tumor एक टाइप का ट्यूमर होता है which is caused in plants. ठीक है. इस प्लाज्मिड को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट्स. एनिमल्स के केस में आप रेट्रोवायरसेस या वायरसेस को यूज कर सकते हो. बैक्टीरिया के केस में ये वाले प्लाज्मिड को आप यूज कर सकते हैं और प्लांट्स के केस में इसको यूज करिए. समझ में आ रहा है पक्के से क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दिस कैन बी डन. एंड कॉम्पिटेंट होस्ट इट कैन बी different types of bacteria like E. coli, Bacillus, Haemophilus, Helicobacter, and all of these examples we have in a textbook. So this is the general idea of something called as
the methods of the rDNA or the process or principle of rDNA technology. ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को जानना है कि भाई ये एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी कैसा है, कि एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी कैसा है, तो उसके लिए अभी अपन नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे. सो विल अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस इज वन प्लाज्मिड. ठीक है, ये एक प्लाज्मिड है जिसका नाम PBr322 है. ये सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, PVU2, then SAL1, then your BAMH1, then HIND3, ECO-R1, PVU1, PST1, बहुत सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है. जस्ट तुम्हारे लिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखा था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेथड. ओके, सबसे पहला अभी अपन देखेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. ठीक है, rDNA टेक्नोलॉजी का मेथोडोलॉजी. राइट साइड में आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि भाई वो डायग्राम का फ्लो कैसा होने वाला है. तो सबसे पहले अभी अपन क्या करेंगे, वी आर नाउ गोइंग टू आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए. ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करेंगे. डीएनए को आइसोलेट करने के बाद क्या, उसके बाद अपने को समझेगा कि अपने को कौन सा जीन चाहिए, कौन सा उसके अंदर नहीं चाहिए. ठीक है, तो चलो सबसे पहला स्टेप इज isolation of gene of interest and DNA. सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे को पहले डीएनए तो बाहर निकालना पड़ेगा ना. तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए. देखो डीएनए कहाँ से निकालना है ये मैटर करता है. मान लीजिए कि वो अगर बैक्टीरिया से आप डीएनए निकाल रहे हो, ठीक है, अगर बैक्टीरिया से डीएनए निकाल रहे हो तो यू कैन यूज सर्टन एंजाइम्स लाइक लाइजोजाइम्स टू ब्रेक ओपन द सेल. अगर मान लो वही आप फंगस से निकाल रहे हो, एंड फंगस का सेल वॉल जो होता है इट इज कॉल्ड एज काइटिन, सो यू कैन यूज एंजाइम कॉल्ड एज काइटिनेज. अगर आप प्लांट से कोई डीएनए निकाल रहे हो देन यू कैन यूज सेल्यूलेज, बिकॉज प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ब्रेक ओपन, देन टेक द डीएनए आउट. डीएनए जो बाहर आप निकालते हो, ठीक है, डीएनए it is extracted using alcohol. It is used using alcohol precipitation. ठीक है, मतलब क्या, आपने डीएनए निकालना है यूजिंग अल्कोहल, और ये अल्कोहल में जनरली आप यूज करते हो इथेनॉल. ठीक है, तो आप इसको यूज करिए, डीएनए को बाहर निकाल लीजिए. एक बार डीएनए बाहर आ गया आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, द सेकेंड स्टेप वुड बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. सो नाउ यू कैन हैव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. जो आपको डीएनए आया वो डीएनए को अभी आप ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कोई भी हो सकते हैं, यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू फ्रैगमेंट द डीएनए. ठीक है, डीएनए को फ्रैगमेंट करेंगे यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. एक चीज यहाँ पे याद रखना गाइस, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब कट करते हैं ना तो दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एंड्स. ये दो टाइप के एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. दो एंड्स कौन से, सबसे पहला यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्टिकी एंड. ठीक है, स्टिकी एंड्स. एंड दूसरा एक होता है जिसको आप बोलते हो ब्लंट एंड्स. मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ स्टिकी और ब्लंट एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, स्टिकी का मतलब देखो जरा. स्टिकी, तुम्हारे पास डीएनए था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, इधर कट कर दिया, इधर कट कर दिया. फाइनल वैल्यू क्या रहेगा इसका, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. ठीक है, इसको दो पार्टीशन में आप देखते हो.
एक ये ग्रुप हो गया, ओके, और एक ये ग्रुप हो गया। तो इसको, इतने पैच को एक्स्ट्रा, इसको बोलते हो स्टिकी एंड। क्योंकि अटैचमेंट जो है ना, नया जो अगर कोई नया डीएनए लगाना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, तो दिस बिकम्स इजियर। स्टिकी एंड में क्या होगा पता है? स्टिकी एंड जैसा है, डीएनए तुम्हारा ऐसा कट किया है, इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा, ब्लंट एंड, सॉरी। सो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ what is called as ब्लंट एंड्स। ठीक है, पक्के से समझ में आ रहा है? सो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स क्या करेगा? दो टाइप का एंड्स आपको जनरेट करके दे देगा, एक स्टिकी एंड होगा, दूसरा आपका ब्लंट एंड हो सकता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस के अभी आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए जो है, ये फॉरेन डीएनए अभी आप कौन सा वेक्टर चूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, कौन सा वेक्टर चूज करेंगे? अभी ये वेक्टर जो चूज करना है, दिस कैन डिपेंड। सो नाउ थर्ड स्टेप is selection of suitable vector। ओके, सुटेबल वेक्टर ले लीजिए डिपेंडिंग अपॉन आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज कितना है। आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपके टेक्स्ट बुक में जीन ऑफ इंटरेस्ट को पैसेंजर डीएनए भी बोला गया है, तो पैसेंजर मतलब वही जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका। ठीक है, सो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स अभी कुछ वक्त पहले मैंने बताया, इट कैन बी plasmid, it can be plasmid, it can be plasmid, it can be back, can be yak, it can be mac। ठीक है, अलग अलग इसमें कुछ प्लाज्मिड्स स्पेसिफिकली ले सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक M13 फाच एज अ वेक्टर। ये वायरस के केस में अगर M13 आपको लेना, M13 इज अ टाइप ऑफ फाच, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इसका मेंशन किया गया हुआ है। या अगर आपको प्लाज्मिड ही यूज़ करना है, तो फिर आप PBr322 बैक्टीरियल प्लाज्मिड अगर यूज़ करना है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज PBr322, इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अभी आप क्या करेंगे? अगर आपने हुआ है तो आपके पास अभी प्लाज्मिड है, देखो जरा, मान लो प्लाज्मिड कुछ ऐसा है, पूरा प्लाज्मिड ऐसा है। आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, उसका कुछ एक स्पेसिफिक साइट कट कर दिया, तुम्हारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। ओके, सो दिस इज योर वेक्टर, this is your gene of interest which is also called as passenger DNA। तुमको करना क्या? इन दोनों को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे? with the help of enzyme called as DNA ligase। so you can use an enzyme which is called as DNA ligase। cut the gene of interest in vector with the same restriction enzyme। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप कट करेंगे ताकि आपको सेम एंड्स मिले। डीएनए लाइगेज ले लीजिए, डीएनए लाइगेज लेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? ये देखो, तुम्हारे पास ये है, देन यू हैव, ठीक है, ये जो बना अभी, इसको बोलना है rDNA, या फिर इसको बोलना है काइमेरिक डीएनए। समझ में आ रहा है पक्का से? दिस इज सिलेक्शन, वेक्टर सिलेक्ट कर लिया आपने। अभी क्या करना है? इंट्रोड्यूसिंग दिस काइमेरिक डीएनए इन सुटेबल होस्ट। ठीक है, तो फोर्थ, introduction of rDNA into suitable host। ये होस्ट बैक्टीरिया अगर रहा
ठीक है, मान लो बैक्टीरिया का सबसे पहले केस बता देता हूँ। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को आप अलग अलग मेथड से इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। आपका जीनोम जो आपका पूरा आरडीएनए है, इट कैन बी आइदर डायरेक्ट मेथड्स, it can be either direct methods or it can be either indirect methods। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड्स में मैं जो नाम बता रहा हूँ आपके बुक में है नहीं वो, इट कैन बी हीट शॉक, कोल्ड शॉक मेथड। ओके, कुछ मेथड है जहाँ पे आपने बैक्टीरिया को शॉक ट्रीटमेंट जैसे देना है हीट एंड कोल्ड का। या फिर डायरेक्ट मेथड्स में हो सकता है micro injection, then you can have particle gun, then you can have say for example electroporation वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा हीट शॉक कोल्ड शॉक देते समय यू कैन यूज अ आयन विच इज कॉल्ड एज डाइवैलेंट कैल्शियम। ओके, इससे क्या होगा, बैक्टीरिया कैन बी रेडी टू टेक अप द डीएनए। देखो अगर मान लो कि सेम चीज आपको करना है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मैंने कुछ वक्त पहले बताया, यस यू कैन हैव एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स आप यूज कर लीजिए। इसका एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का नाम जो था वो क्या था, यस राइट, इट इज टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड में दो रीजन्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये मान लो प्लाज्मिड है, इसके ना दो रीजन्स होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के हैं। एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये दो रीजन्स कौन से हैं, देखो टीआई प्लाज्मिड के दो रीजन, एक होता है जिसको आप बोलते हो टी डीएनए और एक होता है जिसको आप बोलते हो विर रीजन। विर रीजन, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट आपका टी डीएनए का है और ये वाला पार्ट आपका विर का। ठीक है, इसमें का जो टी डीएनए होता है ना, टी डीएनए, इसमें इंटरेस्ट है हमको। टी डीएनए का पार्ट कट कर कर इट इज रिप्लेस्ड बाय अवर आरडीएनए। वहाँ पे आपको आरडीएनए मतलब आरडीएनए भी नहीं, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, विर रीजन क्या करता है, विर रीजन इज अ रीजन विच प्रोवाइड्स necessary enzymes and all of that for the process of multiplication। so इसको ना अपन नहीं टच करते, टीडीएनए को हटा देंगे और टीडीएनए की जगह पे अगर मान लो वापस एक बार बनाऊं आपको बताने के लिए, इसको अगर ये करना रहा इस तरीके से कुछ जाएगा, ये ऐसा है, ऐसा। ठीक है, यहाँ से आपको ये हटा देना है, ये हटा देना है, ये आपका वीर वैसा का वैसा है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये ना, देखो ये खत्म। अभी ये वाला दिस नाउ कैन गो इनटू प्लांट और सेम काम करेगा जो बैक्टीरिया में किया। समझ में आ रहा है, इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना भी अगर पूरा परफेक्टली करेंगे आपके पूरे मार्क्स है। ठीक है, सो दिस कैन बी वन मेथड। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको क्या करना है, अभी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, जो जिसने वेक्टर, जिसने आपका आरडीएनए लिया, उस चीज को अभी आपको सिलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। जो सेल ने आपका आरडीएनए ले लिया उसको ट्रांसफॉर्म सेल बोलते हैं। उसको लेने के लिए यू हैव डिटेक्शन के लिए यू हैव वन मेथड विच इज कॉल्ड एज थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जनरली दो होते हैं जो अपन पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड एज ampicillin resistance, another is called as tetracycline resistance। आपने करना क्या है, आपने ना आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तो एम्पिसिलिन पे डाल दीजिए, एम्पिसिलिन का जीन को कट करिए
और वहां पे आपका जीन को लगा दीजिए, या फिर आपने क्या करना है, टेट्रासाइक्लिन के जीन को कट कर देना और वहां पे अटैच करना है। और दोनों में से दोनों के दोनों जगह पे अटैच नहीं करना है, दोनों में से एक एक ही जगह पे अटैच करेंगे। एक बार आपने दोनों में से कोई तो एक जगह पे अटैच किया, मान लीजिए आपने टेट्रासाइक्लिन पे अटैच किया, ठीक है। द मोमेंट यू अटैच इट टू द टेट्रासाइक्लिन जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का फंक्शन क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का फंक्शन होता है बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से बचाना, ताकि वो उसको अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो मान लो वही जीन मैंने कट कर दिया, तो कैन आई से कि उस बैक्टीरिया को वो एंटीबायोटिक से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वहां पे तो आपने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया ना। तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने उधर वहां पे लगा दिया, उसके बाद वो एंटीबायोटिक का फंक्शन तो खत्म। तो मान लो आपने टेट्रासाइक्लिन पे लगा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उस बैक्टीरिया को आपने टेट्रासाइक्लिन के साथ ट्रीट कर दिया रिएक्शन में, तो कहने से टेट्रासाइक्लिन में ग्रो ही नहीं करेगा। बट अगर एम्पिसिलिन से ग्रो किया तो कर लेगा, बिकॉज एम्पिसिलिन का जीन ऑलरेडी उसके पास है। तो इसके वजह से आपको ये डिटेक्शन के लिए काम आ सकता है कि कौन से मीडियम पे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। अगर एम्पिसिलिन पे ग्रो हो रहा है, मतलब समझने का कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पिसिलिन पे नहीं है। टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब समझने का अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो वो टेट्रासाइक्लिन पे है। तो मतलब वी कैन हेल्प, our understanding could be based on these two types of antibiotic. Either it can be ampicillin resistance or it can be tetracycline. So growth seen in either of the mediums or either of the antibiotics can let us know कि हमारा gene of interest exactly कहाँ पे अटैच्ड है, कौन से पोजिशन पे अटैच्ड है, ये अपने को यहाँ से समझ में आ सकता है। दैट इज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ठीक है। वी आर नॉट फोकसिंग मच ऑन द सेकेंड मेथड, बट इसकी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपने इसको याद रखना है, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। अभी देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि यू विल हैव टू नो दैट ये आपको क्या करेगा, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म्ड है वर्सेस कौन सा सेल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। यही तो बता रहा आपको, ये तो चीजें बता रहा है वो, ठीक है। इसके अंदर एक चीज समझना है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास आपका आरडीएनए है, डायरेक्ट तो नहीं होगा प्लाज्मिड के साथ, तो उसको आपने क्या बोलना है, उसको आपने बोल देना है ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास आपका आरडीएनए नहीं है, इसको आपने क्या बोलना है, इसको आपने बोलना है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। देखियो गाइस, ये समझ में आ रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब। उसके बाद क्या, उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। सो यू अलाउ द होस्ट with your gene of interest, which is rDNA, to multiply for several generations, multiple generations के लिए मल्टीप्लाई करने को अलाउ कर दीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद आप वो जो प्रोडक्ट आया, जो आपका प्रोडक्ट आने वाला है, उसको आप निकाल लीजिए। सो नाउ एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में बनाया था, उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट को आपने आइसोलेट कर देना है। ये करने के लिए यू यूज समथिंग कॉल्ड एज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर गाइस बड़े से टैंक होते हैं जिसके अंदर ये प्रोसेसिंग होता है। मतलब जैसे स्मॉल स्केल पे तो ये नहीं करना है, स्मॉल स्केल पे तो नहीं करना है ना, तो ये बड़े स्केल पे करना है। तो बड़े स्केल पे जब आप वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो, वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, वो सारी चीज़ें जब आप प्रोवाइड कर दोगे, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बायोरिएक्टर्स। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर। जस्ट रिमेंबर द नेम एंड वहां से एक्सप्रेस होगा। आपने क्या करना है, फिर प्योरिफिकेशन करना है, आपने कर देना है प्योरिफिकेशन, एंड प्योरिफिकेशन करने के बाद आपने सेपरेशन कर देना है।
ठीक है, सेपरेशन। एक बार सेपरेशन कर दिया, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट रेडी है। आपका प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपने उसको पैकेजिंग करना है। ठीक है, पैकेज कर दीजिए और पैकेजिंग के बाद आपने उसको मार्केट कर देना है। ठीक है, दिस कैन बी डन। सो ओवरऑल दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ आर टेक्नोलॉजी गाइस। ऑलमोस्ट 60% चैप्टर हो गया। एक ही वीडियो में मेरा इंटेंशन था उसको खत्म करूँ, एंड दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल भी, बस मैंने जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो यहाँ पे खत्म कर दिया है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट मॉड्यूल में लेकर आ रहा हूँ विच इज ऑल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कंप्लीटली थ्योरी, नो कॉन्सेप्ट व्हाटसोएवर। सो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था बायोटेक्नोलॉजी का, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा होगा। कुछ डाउट्स रहेंगे, अगर कुछ है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप कमेंट्स पे बता सकते हैं, और अगर कुछ फीडबैक है तो वो भी डेफिनेटली बता सकते हैं। प्लीज़ डू चेक आउट आवर अर्लियर मॉड्यूल्स, अर्लियर लेक्चर्स, गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस से समझिए कंटेंट, जितना पढ़ा है उतना एटलीस्ट पढ़िए। पॉइंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक्स, और वो लिंक्ड रहेंगे। इसके पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया, इट वॉज ह्यूमन हेल्थ, उस चीज़ को भी जरा अच्छे से समझिए। कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली पूछिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।